دنیا بھر سے باصلاحیت افراد کو بھارت کی طرف راغب کرنے کے لیے ملک میں خلا کے شعبے میں مضبوط ایکو نظام تیار کرنے پر وزیر اعظم نریندر مودی کا زور۔ خلا کے شعبے میں بھارت کی قابل قدر کامیابیاں ملک کی سائنسی کارکردگی، اختراع کے جذبے اور حصول علم کے تئیں لگن اور عزم کی عکاس، نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن۔ گزشتہ 12 برسوں کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں تاریخی سنگ میل عبور کیے گئے، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں پہلگام میں آج چھڑی پوجن کا اہتمام۔ ناظرین آداب، میں ہوں شیخ انوار الحق۔ اب پیش ہیں خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ خلا کے شعبے کے اسٹارٹ اپ اداروں نے سرکار میں اپنے اعتماد اور بھروسے کا اظہار کیا ہے۔ خلا کے شعبے کے اسٹارٹ اپ سی ای اوز کے ساتھ گفتگو کے دوران وزیر اعظم نے ان پر زور دیا کہ وہ اپنی کوششوں میں مسلسل برقرار رکھیں اور خلا کے شعبے کا ایک ایسا مضبوط ایکو نظام تیار کریں جو دنیا بھر سے باصلاحیت افراد کو راغب کرنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں ایک ایسا سازگار ماحول تیار کیا جانا چاہیے جہاں دنیا بھر کے لوگ خلا کے شعبے میں اپنا کیریئر اور مستقبل بنانے کے لیے بھارت کو ترجیحی ملک کے طور پر دیکھیں۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے آج خلا کے قومی دن کے موقع پر عوام کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر نائب صدر نے کہا کہ خلا کے شعبے میں دریافت کے کام میں بھارت کی قابل قدر کامیابیاں ملک کی سائنسی کارکردگی، اختراع کے جذبے اور علم کے حصول کے تئیں لگن اور عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس موقع پر سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ نئے عالمی نظام میں بھارت اپنے خلا کے شعبے کو لگاتار وسعت دے رہا ہے۔ واضح رہے کہ بھارت آج خلا کا قومی دن منا رہا ہے۔ یہ دن ہر سال 23 اگست کو چاند پر چندریان 3 کے کامیابی سے اترنے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ 2023 میں آج ہی کے دن یہ خلائی جہاز چاند کے جنوبی قطب خطے کے نزدیک اترا۔ اس تاریخی واقعے کے بعد بھارت یہ کامیابی حاصل کرنے والا دنیا کا پہلا ملک اور خلا سے متعلق شعبوں میں کام کرنے والے دنیا کے سرکردہ ملکوں میں شامل ہو گیا۔ خلا کے قومی دن کے موقع پر نہ صرف ایک تاریخی کامیابی کا جشن منایا جاتا ہے بلکہ یہ نوجوان نسل کو خلائی سائنس اور اختراع کی جانب راغب کرنے کا ایک موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں گزشتہ 12 برسوں کے دوران تاریخی سنگ میل عبور کیے گئے ہیں اور وکست بھارت کے حوالے سے بنیاد رکھی گئی ہے۔ ایل جی نے آج نئی دلی میں آئی آئی ٹی ایلومنی کونسل کے اہتمام سے منعقدہ ورلڈ وزڈم فورم سے خطاب کیا۔ اپنے کلیدی خطبے میں ایل جی نے معروف شخصیات کو یکجا کر کے وکست بھارت اور ملک کے مستقبل پر بحث و مباحثے کا انعقاد کرنے کے لیے کونسل کی کوششوں کی سراہنا کی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے جموں کشمیر کے نوجوانوں میں اعتماد قائم کیا ہے اور ان کے لیے نئے مواقع دستیاب کرائے ہیں۔ انہوں نے نوجوان نسل پر زور دیا کہ وہ 2047 جب بھارت اپنی آزادی کے 100 سال مکمل کرے گا کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ملک کی ترقی کی دوڑ میں ہر خطہ اور ہر طبقہ آگے بڑھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب کو ہمارے ملک، سماج اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے رول ادا کرنا چاہیے۔ اس دوران ایل جی نے مختلف سیکٹروں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں کی عزت افزائی بھی کی۔ خبریں جاری ہیں، رکتے ہیں ایک مختصر وقفے کے لیے۔ عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ ناظرین، خبروں میں آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس موقع پر آثار شریف، درگاہ حضرت بل، چراری شریف اور پکھرپورہ کے علاوہ جموں کشمیر کے طول و عرض میں اہم زیارت گاہوں اور خانقاہوں میں عقیدت مندوں کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں۔ انہوں نے مقدس تقریب کے موقع پر
बिला खलल बिजली सप्लाई यकीनी बनाने का भी मुतालबा किया है। उन्होंने पखरपुरा में 25 अगस्त से मनाए जा रहे हज़रत अली आली बल्खी के सालाना उर्स के मौके पर भी आवाम को मुबारकबाद दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मरकज़ी सरकार को चाहिए कि जम्मू कश्मीर के अवाम का एतमाद बहाल करने के लिए बगैर किसी ताख़ीर के ठोस और संजीदा इक़दाम करने के साथ जम्मू कश्मीर के लिए रियासत का दर्जा बहाल करे। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने जमहूरी अमल पर एतमाद करते हुए इंतखाबात में हिस्सा लिया, लेकिन अभी तक रियासती दर्जा बहाल नहीं किया गया, जिसकी वजह से अवाम में मायूसी और बेएतमादी पाई जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर ने कहा कि उनकी पार्टी रियासती दर्जे और आईनी हुकूक की बहाली के हवाले से अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद ने किश्तवाड़ ज़िले के छात्रों इलाके में कमसिन लड़की की अलमनाक मौत पर इंतहाई दुख और अफसोस का इजहार करते हुए वाक़े की मियादबंद तहकीकात और मामले की फास्ट ट्रैक सुनवाई का मुतालबा किया है ताकि मुतासरा कुंबे को फौरी तौर इंसाफ फराहम किया जाए। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि इस वहशतनाक जुर्म ने पूरी सोसाइटी को झंझोड़ कर रख दिया है। मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्ला मेहदी ने आज डाक बंगला बारामुल्ला में अवामी राब्ता प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिसमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ तबक़ाए फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों और अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस प्रोग्राम के दौरान शुरका ने लोगों के मसाइल और तरक्याती ज़रूरियात से मुतल्लिक़ मुतालबात मेंबर पार्लियामेंट की नोटिस में लाए। उन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदों और लोगों के दरमियान रिश्तों का मजबूत करने का मुअस्सर ज़रिया एतमाद है। इस मौके पर मेंबर पार्लियामेंट ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके मुश्किलात और मुतालबात मुअस्सर फोरमों पर मुतल्लिका हुक्म के साथ उठाए जाएंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, मेंबर पार्लियामेंट और इंचार्ज जम्मू कश्मीर व लद्दाख डॉक्टर सईद नसीर हुसैन ने प्रदेश कांग्रेस सदर तारिक हमीद कर्रा और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सेक्रेटरी प्रगत सिंह के हमरा आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पार्टी का जम्मू कश्मीर में संगठन सृजन अभियान कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत दूसरे मरहले में ब्लॉक सदूर को मुंतखब किया गया है और ब्लॉक कमेटीज़ को तश्कील दिया गया, जिसकी वजह से पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करने में काफ़ी मदद मिली। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी ने उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार पर शहर श्रीनगर को दरपेश मुश्किलात का अजाला करने के हवाले से पूरी तरह नाकाम होने का इल्ज़ाम आयद किया है। आज ब्रेन निशात में एक अवामी मीटिंग से खिताब करते हुए मौसूफ ने कहा कि शहर श्रीनगर के बस्कीनों को पीने के पानी की सप्लाई, बिजली और अबूर मरूर समेत सभी बुनियादी सहूलियात के हवाले से बदस्तूर मुश्किलात का सामना है। इस दौरान उन्होंने मारूफ सियासी कारकुन आमिर भट्ट का उनके हामियों के साथ अपनी पार्टी में खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी लोगों के दरपेश मुश्किलात को उभारने के साथ साथ अवाम के फलाह व बहबूद को यकीनी बनाने के लिए काम करती रहेगी। पीडीएफ सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन ने कहा है कि अमरीकी सफ़ीर के दौरे जम्मू कश्मीर को लेकर शोर शराबा करने या सियासी इख्तिलाफ राय का मामला बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल शिवपुरा में आज एक पार्टी कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे दौरे माजी में भी हुए हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अटूट अंग है और सियासी इख्तिलाफ राय की आड़ में अवाम को दरपेश मामलात से तवज्जो हटाने की कोशिश करने का कोई जवाज़ नहीं है। मौसूफ ने LG से मुतालबा किया है कि वो सियाहती मकाम स्मरक और तोसा मैदान को सयाहों के लिए बदस्तूर बंद रखने के फैसले पर नज़रसानी करे। CPIM ने आज डाक बंगला कुलगाम में पार्टी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, जिसमें सीनियर लीडरों और वर्करों ने शिरकत की। पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कॉन्फ्रेंस में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने कहा कि मुल्क की आज़ादी के लिए मुख्तलिफ तबकों और अकायद से ताल्लुक़ रखने वाले मुजाहिदीन ने अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया है। बिजली फ़ीस की शरहों में मुजवज़ा इजाफे को लेकर मौसूफ ने कहा कि वो ये मामला असम्बली में उठाएंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सदियों से मजहबी रवादारी, हम आहंगी और भाईचारे का गहवारा रहा है और इसकी इस मुनफरद शनाख्त को कोई मिटा नहीं सकता। मनशियात की बिद्दत पर रोक लगाने के लिए पुलवामा पुलिस ने एक कार्रवाई के दौरान टहाब सदापुरा इलाके में उगाई गई बंग की काश्त को तबाह किया है। इस कार्रवाई में मकामी लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पुलिस ने बताया कि बंग की काश्त और मनशियात के कारोबार में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।
सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में छड़ी मुबारक आज महंत दुपेंद्र गिरी की क़यादत में साधुओं के एक ग्रुप के हमरा पहलगाम पहुंची, जहां दरियाए लेदर के किनारे छड़ी पूजन का एहतमाम किया गया। रिवायती मजहबी रसूम के मुताबिक छड़ी मुबारक अब पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गई है, जहां 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के मौके पर अमरनाथ यात्रा इख्तिताम पजीर होगी। नागबल शोपियां के तारीखी तीर्थ राज कपाल मोचन शिव मंदिर में आज सालाना हवन का एहतमाम हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लो ने खुसूसी तौर शिरकत की। इस मौके पर DC शोपियान, SSP शोपियान और सदर तीर्थ राज कपाल मोचन के अलावा पंडित बरादरी के कई मेंबरान भी मौजूद थे। कपाल मोचन में श्राद्ध रसूमात उन बच्चों से मंसूब होती है जो कि कुदरती आफात या हादसात का शिकार होकर अज़जान हो जाते हैं। कल्चरल एकेडमी ने आज मानसबल क्लब में एक रोज़ा अदबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें वादी के नामवर कलमकारों, शोरा और दानिश्वरों के अलावा कई एक अहम शख्सियात ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के दौरान POY अवार्ड प्रोग्राम का भी एहतमाम हुआ। इस मौके पर अदबी खिदमात और खित्ते की विरासती असासों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के एतराफ़ में मारूफ कलमकार अब्दुल अहद हाजनी को पर्सन ऑफ द अवार्ड 2026 से नवाजा गया। कॉन्फ्रेंस के दौरान दो तसानीफ की रस्म रोनुमाई भी अंजाम दी गई, जबकि मौसीकी का एक प्रोग्राम भी पेश किया गया। रहबर तालीम टीचर्स फोरम ज़िला कुलगाम ने आज एक उस्ताद वसीम अहमद लोन का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया, जिसको हाल ही में सदर जमहूरिया ने 80वें यौम आज़ादी के मौके पर एट होम में शामिल होने की दावत दी थी। वसीम अहमद ने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि एट होम में शामिल होना मेरी ज़िंदगी का एक यादगार मौका है। हंदवाड़ा में एक रज़ाकार तंजीम की कोशिशों की बदौलत 11 जोड़ों की इज्तिमाई निकाह ख़्वानी की रस्म अंजाम दी गई है, जबकि 60 के करीब लड़कियों को मैरिज असिस्टेंस के दायरे में लाया गया है। इस सिलसिले में एनवायरनमेंट हॉल हंदवाड़ा में मुनक्किदा तकरीब में SSP हंदवाड़ा ने मेहमानी खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर मुंतज़मीन ने कहा कि मुतवस्सित कुंभों से ताल्लुक़ रखने वाले जोड़ों को मदद करने के हवाले से यह रज़ाकार तंजीम अपनी पहल जारी रखेगी। CRPF की 110वें बटालियन ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत आज पतलबाग पामपुर में मुफ्त तिबी कैंप का एहतमाम किया। कैंप का इफ्तिताह बटालियन के कमांडेंट BR मीना ने किया, जबकि इस मौके पर फोर्सेस से वाबस्ता दीगर अफसरान और बड़ी तादाद में आम लोग मौजूद रहे। कैंप से बड़ी तादाद में लोगों ने इस्तिफादा किया। इस दौरान मरीजों में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गईं। इस मौके पर मुंतज़मीन ने कहा कि आवाम को राहत पहुँचाने की फोर्सेस की मुस्तकबिल में भी ऐसी कोशिशें जारी रहेंगी। वादी कश्मीर में आज सुबह बेशतर इलाकों में हल्की बारिश हुई। दिन के दौरान मतला जुज़वी तौर अबरालूद रहा। इस दौरान श्रीनगर में तैनात महकमे मौसमियात के एक माहिर ने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि कल से 28 अगस्त तक जम्मू कश्मीर में मौसम गर्म रहने का इम्कान है। ताहम उन्होंने कहा कि इस वक्फे के दौरान सुबह सवेरे और दोपहर बाद चंद इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी भी हो सकती है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 27.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 15.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 33 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 21.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ। इजाज़त चाहेंगे, आदाब।